Hi everyone, welcome to the YouTube channel of the Chem Lover. So in this part of the video, I'll tell you the preparation strategy for last 2 days. How to utilize the last 2 days for your NEET 2021 competitive exam and how to appear in the exam, which part of the paper you are going to solve first. That means how to utilize, how to solve maximum questions by utilizing minimum time. So in this part of the video, we'll discuss all these things. So now see, your question paper is basically from three parts. That's from chemistry part, physics part, and biology part. Now from the biology part, we will have conceptual questions directly from the text. From physics, we can have certain numericals as well. And from chemistry, we can have conceptuals as well as numericals as well. So what we will do, we will first solve this biology part because it will save our time. So first it is advised to solve this biology part. First solve biology part, then come to the chemistry part, then solve. This is the first part you have to solve. As per my opinion, this is the first part you have to solve. And then you have to move to the next part, that's chemistry part. This will be your second part you are going to solve. And then in the remaining time, you have to attempt the physics part. This will be third part you have to solve. Now see, there will be 4 options for each question. Now how to attempt the question? Now since for example, we have a question, or here we have a question, and for this question there will be 4 options. Option number 1, option number 2, option number 3, option number 4. How to solve, how to make yourself confident that we are getting the right answer. So यहाँ पे आपको elimination method यूज करना है. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू हैव टू अप्रोच बाय एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे अप्रोच करोगे? तो पहले आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1, अगर ये रॉन्ग होगा तो इसको मार्क करो रॉन्ग. ऑप्शन नंबर 2, फॉर एग्जांपल ये रॉन्ग होगा, फॉर एग्जांपल ये राइट होगा तो इसको राइट मत मार्क करो. पहले आप ऑप्शन 3 को अटेम्प्ट करो. इफ इट इज रॉन्ग मीन्स अगर आप इस ऑप्शन को रॉन्ग करते हो, आपका क्वेश्चन 75% राइट होता है. अगर आप इस ऑप्शन को रॉन्ग करते हो, आपका क्वेश्चन 50% राइट होता है. अगर आप इस ऑप्शन को भी रॉन्ग करोगे, इट विल बिकम 25% राइट एंड दिस बिकम्स देन द राइट आंसर. तो इसमें गुंजाइश नहीं बचती है कि आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत होगा. सो दिस इज द बेस्ट वे मेथड. तो ऐसा नहीं करना कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली आप इस आंसर को जानते हो, आप डायरेक्टली इस आंसर को देखोगे. बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मोर क्लोजली रिलेटेड आंसर्स होते हैं, तो बेसिकली वहां पे आपके नेगेटिव मार्क्स ज्यादा आते हैं. इसलिए बेटर है एलिमिनेशन मेथड यूज कर. तो दिस इज वन स्ट्रेटजी आप कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे. बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट, देन केमिस्ट्री पार्ट, देन फिजिक्स पार्ट. तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है, यू कैन प्ले लक गेम ओवर हियर आल्सो. लक गेम, तो लक गेम आप कहाँ पे यूज करोगे? पहले जब आप फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू विल अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस इन फर्स्ट राउंड. In first round, you will attempt only those questions which you are confident that these are correct. Then in the second round, if you know out of 4 options, this is option A, option B, option C and option D. And if you know out of 4 options, you know that 2 options are wrong on answers. You know that there are 2 options which are wrong. For example, option A and option C, they are wrong. Therefore, there is 50% probability the option may be B or the option may be D. तो यहाँ पे आप अपने लक को आजमा सकते हो. अगर आपका स्कोर इनमें से पहले राउंड में अच्छा होता है, तो यहाँ पे आप अपना लक आजमा सकते हो. बिकॉज द चांसेस ऑफ गेटिंग राइट आंसर इज 50%. तो यहाँ पे आप लक को आजमा सकते हो. तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस में लक नहीं आजमाना है. एटलीस्ट इन 5 to 10 क्वेश्चंस you can use your luck game. यहाँ पे आप लॉजिक यूज करके अपना लक गेम आजमा सकते हो. नंबर 2 इंपॉर्टेंट थिंग इज लास्ट 2 डेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे. लास्ट 2 डेज
तो मेरी जो सजेशन है, तो सजेशन में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो मेरी जो सजेशन है लास्ट 2 डेज को यूटिलाइज करने की, ड्यूरिंग माई एग्जाम टाइम आई यूज टू राइट डाउन ऑल फार्मूलाज ऑफ फिजिक्स और फार्मूलाज। तो फिजिक्स की सारी फार्मूलाज जो है उनको आप रिवाइज करो, बिकॉज फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी फार्मूला पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। और फिजिकल केमिस्ट्री की ऑल फार्मूलाज, फिजिकल केमिस्ट्री की ऑल फार्मूलाज, इनको आप रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। आप एग्जाम के मतलब अगर आज आपका एग्जाम है, आज सुबह इनको आप रिवाइज कर सकते हो। ऑल फार्मूलाज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑल फार्मूलाज ऑफ फिजिक्स। So if you remember only these formulas of physics, you can get 8 to 10 marks. Directly from formulas, 8 to 10 marks. And from the basics, you know, in the physics, you can get also 8 to 10 questions you can solve. You can also solve 6 to 7 questions. That means easily you can, without getting depth in the physics, you can solve it 17 to 18 questions easily. 17 to 18 questions are always easy in the physics. At least 20 questions from physics part, they are easy. So you can get those 20 questions by remembering all formulas and apply the logic over there. तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सारी फार्मूलाज यूज करनी है। रिमेंबर ऑल फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट में फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सॉल्यूशंस में फार्मूलाज बेस्ड कंसेप्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कोलराश लॉ पे क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल आपका फैराडेज लॉ पे क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल आपका नर्न्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है। स्पॉन्टेनिटी एंड फ्री एनर्जी पे क्वेश्चन आता है। थर्मोडायनामिक्स में फॉर एग्जांपल हेस लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो दीज आर ऑल फार्मूला बेस्ड। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम में आपको पीएच, पीओएच लाइक दैट, और तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है या बफर सोल्यूशन पे क्वेश्चन आ सकता है। सो फार्मूलाज को रिमेंबर करने से आपके एडिशन हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, रिलेशन आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है तो नीट एग्जाम, अगर आज मानो कि आपका एग्जाम कल है, कल आपका एग्जाम है, तो आज शाम को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करोगे। रिवाइज ऑर्गेनिक, रिवाइज ऑर्गेनिक। तो एक दिन पहले ऑर्गेनिक को रिवाइज करो, फिर बुक बंद करके आप दिमाग में लगाओ कि ये रिएक्शन यहाँ होती है, यहाँ ये प्रोडक्ट बनता है। मतलब टेक्स्ट को आपको जैसे कि रट्टा मारते हैं वैसे आपकी टेक्स्ट होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक में वो आपको सब आने चाहिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। इफ़ यू नो द पीरियोडिसिटी, अगर आप पीरियोडिसिटी को इन डिटेल जानते हो, इफ़ यू नो केमिकल बॉन्डिंग इन डिटेल, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को डिटेल में जानते हो, तो यू कैन अप्रोच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी वेल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 15 क्वेश्चंस आते हैं इजीली फ्रॉम दीज 2 कंसेप्ट्स। अगर आप इन 2 कंसेप्ट्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन 2 कंसेप्ट्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, यू कैन इजीली सॉल्व 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूजिंग दीज 2 कंसेप्ट्स, because the chemical bonding is the heart of inorganic chemistry. If you know chemical bonding, you can apply it to whole inorganic chemistry. तो प्लस एडिशन में आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जरूरत है। दिस इज हाउ आई यूटिलाइज्ड माई टाइम ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज, जब भी मेरा कोई एग्जाम होता था। दीज आर माई सजेशन, द सजेशंस विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। विश यू ऑल द बेस्ट। तो मैं चाहता हूँ सब स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा जाएगा। तो थैंक्स फॉर ऑल बीइंग विद मी। Please share and subscribe my YouTube channel, that's Chem Lover, if you really like my videos and my chemistry lectures. Thank you.